Okay, so hello everyone, good evening. I hope, am I audible? Can anyone just confirm me? Am I audible and my screen is visible as well? Anyone? Okay, great. Okay. So, see, what we did in the last class, and let me just introduce myself first. Okay, right? Maybe आप में से कुछ लोग नए हैं. So, my name is Abhinay Yadav. I'm from IIT Jodhpur, a data scientist for 50 Star Technologies and the founder at Hygiene Lab, which is a edtech company. And we are here to provide you the free bootcamp from the beginners to the advanced level. And this will be the day 2, right? कल हमने डे 1 किया था. एंड इफ़ यू हैवेंट सीन दैट वीडियो या फिर आपने अटेम्प्ट काइंड ऑफ अटेंड नहीं किया है, सो व्हाट यू कैन डू, आप हमारे यूट्यूब चैनल में चले जाइएगा, राइट? हाइजन लैब्स, एंड देन यू विल फाइंड आउट द फर्स्ट वीडियो, राइट? आप उसको गो थ्रू कर लीजिएगा, मे बी आफ्टर दिस क्लास, और मे बी कल भी आप कर सकते हो, राइट, बिफोर द नेक्स्ट क्लास. ओके. So previous class में what we did, we have covered some sort of basic concept. Means if you can ask me, so हमने PVM वगैरह देखा था, what is PVM, right? Even we have seen some of the concept कि भाई kind of hardware के format में, right? How your Python programming actually works, right? We have seen the Python virtual environment, right? That how you can create your virtual environment when you want to make your project specific, right? और दूसरे से kind of contradict ना हो and all these things, right? And we have compared the two languages, the Python and the C as well. And yeah, one more thing is that the notes we will share by today, right? मतलब आज के notes और कल के notes we will share in the description. Okay, now it's clear. Voice is clear, Aman. Just a second. Give me a minute, right? Just a second. Yeah, now it's clear, I guess so. Right? Okay, 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 great. Okay. Or just give me a moment. I will be just back, right? Give me a moment. Okay. Let me just adjust microphone. Just give me a moment. I hope now it will be loud and clear, right? Okay.
So see what we did means in the last class we have started with all these things, right? And now in today's class we will do some sort of the advanced concept, right? Not that much of advanced, but हाँ कुछ हम नए concept आज और explore करेंगे in the same pipeline, right? And that is going to be your chapter 2 over here, right? So I have basically divided all the things, right? Even we have done I guess chapter 2 as well. मैंने आपको last class में बताया था that how you can just install the Python in your system, right? And how you can just simply set your path, right? And when you are done with the installation, right, you can even check whether your Python has been installed or not by using this command, right? Python hyphen version, right? So you can just simply use this particular command and you can just check over here that कि भाई आपका Python install हुआ है या फिर नहीं हुआ है, right? In a similar way, along with this thing, Python के साथ एक package भी install होता है and even you can check that package as well by using pip, which is installed for the package installer for Python, right? And again you can check the same thing, pip hyphen version, right? See, this package installer we actually use just to install some other libraries. Maybe वो pandas हो सकता है. Maybe it could be the matplotlib or the seaborn. यूज़ करेंगे in future, right? We will see कि कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं. Okay. Now starting with one more important concept that is called the data types. Okay. So before going to the data types, means I just want to ask you, how many of you know यार what is comments and why we need the comments? आप रिप्लाई कर सकते हैं राइट इन द चैट सेक्शन. ओके, व्हाट इज कमेंट्स एंड व्हाई वी यूज द कमेंट्स? एनीवन? ओके, सो सी लेट मी जस्ट टेल यू. सी कमेंट्स वगैरह हम क्यों यूज़ कर सकते हैं? लेट्स से कि हमारे पास दो डेवलपर हैं, राइट? इफ वी टॉक अबाउट द काइंड ऑफ लार्ज स्केल एप्लीकेशन, तो लेट्स से वी आर हैविंग द टू डेवलपर, राइट? एक डेवलपर हमारे पास D1 है, लेट्स से अनदर डेवलपर वी हैव विच इज D2, ठीक है? और दोनों डेवलपर काइंड ऑफ सेम सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं. दे आर बिल्डिंग द सेम पीस ऑफ सॉफ्टवेयर, राइट? सो एक्चुअली कमेंट्स का काम क्या होता है? जस्ट टू टेल व्हाट पीस ऑफ दिस कोड इज एक्चुअली गोइंग टू वर्क, राइट? जो गिवन कोड बंदे ने लिखा है वो कोड क्या करेगा, ओके? उसको समझाने के लिए इन अ फॉर्म ऑफ लेवल लैंग्वेज व्हाट वी कैन डू, वी सिंपली यूज द कमेंट्स पार्ट, राइट? अगर D1 देखेगा इस कमेंट्स को तो ही विल अंडरस्टैंड कि यार ये पीस ऑफ कोड आपका क्या कर रहा है, राइट? इन अ सिमिलर वे, लेट्स से कि D2 ने कुछ काइंड ऑफ कोड लिखा होगा, राइट? लेट्स से D2 ने कुछ लिखा है कोड, तो ही कैन ऑल्सो राइट द सेम कॉमेंट्स, राइट? और D1 जब उस पीस ऑफ कोड या फिर कॉमेंट्स को देखेगा, राइट, तो उसको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली में ये कोड क्या कर रहा है, ओके? कॉमेंट्स मीन्स टू नो वाई वी यूज. कॉमेंट्स मीन एक्चुअली थी द थिंग इज दैट कि हम कोड में क्या कर रहे हैं उसको बताने के लिए वी सिंपली यूज द कॉमेंट्स पार्ट, राइट? And one more important thing is that कि last class में we have discussed about the PVM, right? So PVM क्या करता है? इन comments को ignore कर देता है whenever it is doing the compilation of your given code, right? So what it does, it actually ignore this thing. I mean, although this is the part of your program, right? But इस चीज को हम लोग कोड नहीं करते, मतलब PVM इसको एग्जीक्यूट नहीं करता है, राइट? ये सिर्फ कोड में लिखा होगा, राइट? यू विल सिंपली सी, राइट? और फिर इसके बाद आप देखोगे ओके दिस पीस ऑफ कोड इज डूइंग दिस काइंड ऑफ स्टफ, राइट? और दूसरा पीस ऑफ कोड दूसरा काम करता है एंड सो ऑन, ओके? सो थोड़ा सा डेफिनेशन वगैरह देख लेते हैं तो दैट विल मेक मच मोर सेंस, राइट? सो यू कैन जस्ट सी ओवर हियर द कमेंट्स आर नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट, राइट? इट मीन दैट नाइदर द कंपाइलर नॉट द पीवीएम विल एग्जीक्यूट देम. कमेंट्स आर फॉर द पर्पज ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर द ह्यूमन बीइंग, राइट? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि डेवलपर 1 या फिर डेवलपर 2 है या फिर वो बंदा जो कि कोड नहीं जानता है, राइट? सो वहाँ पे भी आप कमेंट्स वगैरह लिख सकते हो, राइट? नाउ द थिंग इज दैट कि भाई व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमेंट्स इन पाइथन. सो पाइथन में हमारे पास 3 टाइप्स के कमेंट्स होते हैं, राइट? द फर्स्ट वन वी हैव इज द सिंगल लाइन कमेंट्स, देन वी हैव द मल्टी लाइन कमेंट्स, राइट? देन वी हैव द kind of doc string,
राइट। डॉक्स्ट्रिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, विल कम्स टू दिस क्वेश्चन कि भाई डॉक्स्ट्रिंग क्यों इंपॉर्टेंट होता है, और सिंगल लाइन कमेंट्स है तो सिंगल लाइन कमेंट्स को क्यों यूज करते हैं, राइट, व्हाई वी डोंट यूज दी मल्टी लाइन कमेंट्स एंड सो ऑन एंड सो ऑन। जितने भी आपके डाउट्स होंगे होपफुली यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, राइट। सो सी इफ वी टॉक अबाउट दी सिंगल लाइन कमेंट, सो सिंगल लाइन कमेंट स्टार्ट अगर आपको लिखना है सो आप लिखोगे हैश, राइट, एंड यू विल राइट ओवर हियर दिस इज अ एड प्रोग्राम, राइट। अगर आपने कुछ भी प्रोग्राम वगैरह लिखा है तो आप ऐसे करके लिखोगे एंड देन यू कैन जस्ट सिंपली राइट योर पीस ऑफ कोड ओवर हियर, है ना। तो देखो अगर ये एग्जांपल आप देखोगे, सो दिस इज अ सिंगल लाइन कमेंट एंड प्रिंट हेलो वर्ल्ड, राइट। सो दिस कमेंट इज अ इनलाइन कमेंट, जब आप लिखते हो यहाँ पे, सो दिस इज समटाइम कॉल्ड द इनलाइन कमेंट एज वेल, क्योंकि वो कोड के जस्ट ऊपर लिखा जाता है, राइट, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द सिंगल लाइन कमेंट। सो अगर आपको बहुत ही मतलब काइंड ऑफ ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करनी है, so at this moment what you can do, you can just simply take the help of single line comments, right. so this is very important कि भाई single line comments वगैरह, and usually अगर आप कोड करते हो तो it is recommended कि आप kind of comments लिखो, right. why so, the reason being is that maybe आप कल को फिर आते हो, maybe 1-1.5-2 महीने बाद आते हो, तो by looking at the comment you can just simply understand कि भाई वो piece of code क्या कर रहा है, right. So I hope this thing is making much more sense, है ना, okay. Now we have the multi-line comment. So multi-line comments actually में क्यों यूज होता है, when you have kind of बहुत सारा चीज अगर आपके लिए लिखने के लिए होता है, at that moment we simply go with the multi-line comments, right. So जैसे हमने सिंगल लाइन कमेंट देखा था तो उसमें हम लोग एक हैश सिंबल का यूज करते थे, राइट। अगर मैं आपको बोलूँ कि यार मल्टी लाइन कमेंट लिखना है तो आप बार बार क्या हैश का यूज करोगे क्या, सो सी दैट विल नॉट मेक एनी सेंस, है ना। मतलब अगर आप मेरे को बोलोगे कि एक लाइन यहाँ लिखो, फिर यहाँ पे लिखो, फिर यहाँ पे लिखो, राइट, सो ये थोड़ा सा हैक्टिक हो जाता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए व्हाट वी डू, वी एक्चुअली यूज द ट्रिपल कोट्स। जैसे हम स्ट्रिंग को डिफाइन करते हैं सिंगल कोट्स में या फिर डबल कोट्स में, राइट। जैसे कैर को हम डिफाइन करते हैं, मे बी अगर आप C++ की बात करो या फिर जावा की बात करो, और स्ट्रिंग को हम डिफाइन करते हैं मतलब अंदर लिखते हैं इन अ डबल कोट्स, राइट। तो इन अ सिमिलर वे अगर हम बात करेंगे कि भाई मल्टी लाइन कमेंट्स की, तो वी एक्चुअली यूज द ट्रिपल कोट्स, राइट। आप ट्रिपल कोट्स का यूज भी कर सकते हो, आप डबल कोट्स का भी यूज कर सकते हो, राइट, इवन यू कैन यूज द सिंगल कोट्स एज वेल। अब इतने सारे ऑप्शंस क्यों होते हैं, विल कम टू दैट पॉइंट एज वेल। एनीवन हु वांट्स टू टेल यार कि इतने सारे ऑप्शन क्यों होते हैं हमारे पास कमेंट को लिखने के लिए, यस एनीवन, कोई बताना चाहेगा कि ऐसा आपने कभी देखा है कि यार अगर आपको कुछ कमेंट्स लिखना है तो मे बी आप ट्रिपल कोट्स वहाँ पे यूज़ ना कर पा रहे हो, या आपको वहाँ पे सिंगल कोट्स या फिर डबल कोट्स को यूज़ करना पड़ रहा हो, यस अमंग द ऑडियंस एनीवन यू वांट टू टेल कि भाई ऐसा क्यों। व्हेन वी राइट अ फंक्शन वी यूजली यूज द ट्रिपल कोट स्ट्रिंग, हाँ बट ऐसा क्यों, मतलब देयर विल बी सम सॉर्ट ऑफ रीजन ना, कि यार ये ऐसा रीजन है तो इसके कारण हम इसको यूज करते हैं, देयर शुड बी ए काइंड ऑफ रीजन, राइट। ओके लेट मी जस्ट टेल यू, देखो लेट सपोज अगर मैं सिंगल कमेंट्स की बात करता हूँ, सिंगल कमेंट्स की, राइट, सिंगल कोट्स की, ठीक है। सो लेट्स से अगर आप एक कोई स्टेटमेंट लिख रहे हो, लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ नमन्स हाउस, सो डोंट यू थिंक यार यहाँ पे एरर आएगा, व्हाट यू से, आपको नहीं लगता यहाँ पे एरर आएगा, राइट। अगर आप यहाँ पे लिख रहे हो नमन्स हाउस, तो देखो यहाँ पे 3 सिंगल कोट्स हो गए, है ना, और यहाँ पे काफ़ी एक अच्छा एरर आपको देखने के लिए मिलेगा आपकी स्क्रीन पे, राइट। सो कभी कभी जब यूज़र कुछ चीज़ों को डिफाइन करता है या फिर कुछ स्ट्रिंग को प्रिंट कराना चाहता है जहाँ पे सिंगल या फिर डबल कोट्स यूज़ हो रहे होंगे, मे बी ट्रिपल कोट्स यूज़ हो रहे होंगे, एट दैट मोमेंट व्हाट वी डू, हम उसका जस्ट अपोजिट या फिर दूसरे कमेंट्स या फिर दूसरे जो कोट्स होते हैं उनको हम यूज़ करना प्रेफर करते हैं,
राइट। जैसे एग्जाम्पल है नमन हाउस, तो इसमें देखो सिंगल कोट्स कितने हो गए, 3 हो गए। अगर आप ऐसे लिखोगे इट इज एक्चुअली गोइंग टू क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ एम्बिग्यूटी, राइट। सो व्हाट वी कैन डू, यार इससे बचने के लिए वी कैन आइदर यूज द डबल कोट्स ओवर हियर, है ना, सो दैट विल मेक सेंस, या फिर आप यहाँ पे ट्रिपल कोट्स का भी यूज कर सकते हो। I hope now the things is making much more sense, है ना। See, before kind of doing any kind of thing, right, before executing or before learning anything, right, you should know why, right। Why is very very important over here कि भाई ये ऐसा हम क्यों करते हैं। I hope mean this thing is making sense, right। In a same way अगर आप डबल कोट्स की बात करोगे, right, so sometime हम डबल कोट्स स्ट्रिंग के फॉर्मेट में अंदर लिखते हैं, right, हम कमेंट्स में डबल कोट्स को यूज कर लेते हैं। सो उस मोमेंट में अगर आप डबल कोट्स एक यूज कर रहे हो तो अगेन इट इज गोइंग टू क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ एम्बिग्यूटी, राइट। सो उस मोमेंट में क्या करते हैं, वी डोंट गो विद द डबल कोट्स, हम वहाँ पे सिंगल कोट्स यूज कर देंगे। और व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट सिंपली गो विद द ट्रिपल कोट्स एज वेल, राइट। सो आई होप मीन दिस काइंड ऑफ पर्टिकुलर रीजन इज मेकिंग सम सॉर्ट ऑफ सेंस, राइट, कि हम ऐसा करते क्यों हैं, isn't it, right everyone? Okay, so now moving to the ट्रिपल कोट्स, है ना। तो आप डबल कोट्स भी यूज कर सकते हो, आप ट्रिपल कोट्स भी यूज कर सकते हो, राइट, एंड इवन यू कैन यूज द सिंगल कोट्स एज वेल, राइट। डिपेंड करता है कि आप इस काइंड ऑफ यहाँ पे आप क्या लिखते हो, राइट, व्हाट यू आर गोइंग टू राइट ओवर हियर इन दिस एंटायर कमेंट सेक्शन, राइट। अगर आप सिंगल कोट्स यूज कर रहे हो, राइट, कमेंट सेक्शन में, तो आप सिंगल कोट बाहर यूज नहीं करोगे, नहीं तो एम्बिग्यूटी क्रिएट होगी, इट इज गोइंग टू गिव यू द सिंटैक्स एरर, राइट। अब टाइप्स ऑफ एरर क्या होते हैं दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन, ओके। इन अ सिमिलर वे अगर हम बात करेंगे डॉक्स्ट्रिंग की, सो डॉक्स्ट्रिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो यूजुअली क्या होता है जब आप फंक्शन लिखते हो, राइट, और जब आप फंक्शन के बारे में बताना चाहते हो कि ये मेरा फंक्शन ये करेगा, राइट, यहाँ पे हम पर्टिकुलर लाइन के बारे में बता रहे थे, द पीस ऑफ लाइन के बारे में हम बता रहे थे कि भाई ये जो लाइन है ये काइंड ऑफ प्रिंट करेगी हेलो वर्ल्ड, राइट। बट लेट्स से एट अ मोमेंट व्हेन यू वांट टू डिस्क्राइब योर फंक्शन और यू वांट टू डिस्क्राइब योर क्लास, राइट, कि वो जो गिवन क्लास है वो क्या करेगा। सो उस मोमेंट पे जो हम फंक्शंस या फिर जो हम कमेंट्स लिखते हैं, राइट, उन कमेंट्स को व्हाट वी कॉल, वी सिंपली कॉल इट डॉक्स्ट्रिंग, राइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, क्योंकि पूछा भी जाता है कि भाई व्हाट इज डॉक्स्ट्रिंग एंड व्हाई वी यूज द डॉक्स्ट्रिंग, राइट। So even you can just read over here, docstring are the special kind of comment used to document the modules, right, classes or functions and methods, right. They are written using the triple quotes string and are placed immediately after the definition of the module, class or the function, right. तो यूजुअली हम डॉक्स्ट्रिंग की हेल्प से बताते हैं कि आपका जो पीस ऑफ जो फंक्शन है या फिर जो पीस ऑफ जो क्लास है या फिर मॉड्यूल है, व्हाट इट इज एक्चुअली गोइंग टू डू, राइट। एंड यूजुअली जब आप लार्ज स्केल एप्लीकेशन डेवलप करोगे इंडस्ट्री में, तो आप हमेशा डॉक्स्ट्रिंग का यूज़ करोगे, सिंगल कमेंट्स का बहुत ही कम यूज़ होता है, राइट, क्योंकि मोर ओवर जो हमारा जो भी सॉफ्टवेयर डेवलप होगा वो क्लासेस या फिर फंक्शन के फॉर्म में ही होता है, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इवन यू कैन जस्ट सी ओवर हियर, दिस इज द एग्जांपल, सो दिस इज द फंक्शन वी हैव, राइट, ओके। सो इस फंक्शन को देखो यहाँ पे लिख रहे हैं, दिस फंक्शन प्रिंट अ ग्रीटिंग मैसेज, राइट, एंड दिस इज द ग्रीटिंग मैसेज, ओके। फिर अगर हम क्लास की बात करें, सो क्लास के अंदर, ओके, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंक्शन एंड मेथड? किसी को पता है दोनों में डिफरेंस क्या होता है? यस, अमंग द ऑडियंस एनीवन हु वांट्स टू टेल? मे बी सुजल और अमन, सूरज, एनीवन? What is the difference between function and method? This is also very important, right? अगर आप फ्रेशर हो और यूर इन द सेकेंड और द थर्ड ईयर, राइट, सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट, आपके सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मतलब यूजुअली ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंक्शन एंड मेथड? फंक्शन इज व्हाट टू डू, ओके, नॉट मेकिंग एनी काइंड ऑफ सेंस। अरुण, थोड़ा सा और आप एलोबरेट करोगे इसको? Method is how to do, okay. ठीक है, the function is a block of code that perform a task, but method is a function that is associated with the object. ठीक है, अगर देखो, अगर मैं इस चीज को थोड़ा सिंपल वर्ड में समझाऊं, अगर कोई भी फंक्शन क्लास के अंदर लिखा है, राइट,
सो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मैथड बोलते हैं। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन है। एनीथिंग रिटन इनसाइड द क्लास, राइट, और यू कैन से एनी फंक्शन रिटन इनसाइड द क्लास, दैट इज कॉल्ड द मैथड, राइट। अगर कोई फंक्शन इंडिविजुअली लिखा है, कोई क्लास के अंदर नहीं लिखा है, तो दैट इज कॉल्ड द फंक्शन, उसे फिर हम फंक्शन ही बोलेंगे, दैट्स इट। ठीक है, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन है। देखो आप यूजुअली ट्राई किया करो कि जो भी आप डेफिनेशन बोलते हो, नॉट ओनली यहाँ पे बट इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल, कि वो डेफिनेशन सामने वाले को बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए, राइट। फंक्शंस मीन्स टू डू द रिपीटेड थिंग्स एंड द मैथड इज द वे टू डू द थिंग्स। ठीक है, मतलब मोर ओवर सही डेफिनेशन है, राइट। ओके, मोर ओवर सही डेफिनेशन है। अगर आप मेरे से बोलोगे कि एग्जैक्ट काइंड ऑफ पर्टिकुलर डेफिनेशन क्या होगी, तो देखो फंक्शन और मैथड दोनों सेम ही काम करते हैं, राइट। बट जो मैथड होता है वो क्लास के अंदर हम लिखते हैं, राइट, और फंक्शन हम बाहर लिखते हैं इंडिविजुअली। सो अगर आप इस पीस ऑफ कोड की बात करोगे, सो दिस इज गोइंग टू बी योर फंक्शन एंड दिस इज गोइंग टू बी योर मैथड। ठीक है, सो आई होप थोड़ा सा यहाँ से भी आपको क्लैरिटी मिलेगी बिटवीन द फंक्शन एंड मैथड, आई होप सो, राइट। ठीक है, सो प्लीज आप वो डेफिनेशन समझें जो कि आप हमेशा याद रख पाओ, राइट। ऐसा कुछ भी आप ना समझें जो कि आप मीन वाइल लॉन्ग टर्म में भूल जाओ, राइट। सो एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आप समझा भी पाओ सामने वाले को कि भाई उसको चीज़ें समझ में भी आए, राइट। सो दैट काइंड ऑफ थिंग्स ऑल्सो गिव द ह्यूज इम्पैक्ट, राइट, आपके इंटरव्यू प्रिपरेशन में भी, इवन व्हेन यू आर राइटिंग योर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स। ओके, so I hope this thing is making some sort of sense, right? Now see, comments वाला पार्ट हमने कर लिया, right? और मैंने आपको बोला कि भाई comments वगैरह को आपको लिखना है, right, whenever you are doing some sort of stuff. Now moving to the data types, है ना। आप लोगों ने डेटा टाइप्स वगैरह काफ़ी देखा होगा, इवन आपको पता भी होगा कि भाई डेटा टाइप्स क्या होता है, राइट। बट बिफोर गोइंग टू द डेटा टाइप, लेट मी जस्ट आस्क यू एनीथिंग कि भाई वेरिएबल क्या होते हैं। एनीवन हु वांट्स टू से व्हाट इज वेरिएबल? यस, एनीवन? वेरिएबल क्या होते हैं? आप बताइए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि और क्या चीज़ हम इसमें इम्प्रूव कर सकते हैं इन द मेकिंग ऑफ डेफिनेशन ऑफ अ वेरिएबल, राइट। कि अगर वेरिएबल अगर हम समझाते हैं तो और क्या चीज़ें हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। एनीवन? मे बी नील और मे बी द सूजल और एनीवन? ओके, लेट मी जस्ट टेल यू, सी वेरिएबल क्या होते हैं। वेरिएबल इज नथिंग बट अ कंटेनर, ठीक है। एक कंटेनर होता है। अब ये कंटेनर कहाँ पे होगा? ये कंटेनर आपका हार्ड ड्राइव में होगा, ये कंटेनर आपका एसएसडी में होगा, या फिर ये कंटेनर आपका मेन मेमोरी में होगा, ठीक है, जो कि कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। फिर अगर आप यहाँ पे डिफाइन करते हो 4, तो a इज इक्वल टू 4, राइट। और इस जो वैल्यू को जो होल्ड करता है, इस जो कंटेनर की जो वैल्यू को होल्ड करेगा, दिस पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड द वेरिएबल। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड द वेरिएबल। अब ये कितना स्पेस होल्ड करेगा वो डिपेंड करेगा कि आप यहाँ पे किस टाइप का डेटा पास कर रहे हो, राइट। क्या ये इंट है, राइट, क्या ये फ्लोट है, क्या ये कैर है, या फिर ये स्ट्रिंग है। आई होप आई एम मेकिंग माई सेल्फ क्लियर, राइट। या वेरिएबल इज यूज टू स्टोर द डेटा, है ना। अब ये डेटा कैसे स्टोर होगा? तो जब कभी भी आप वेरिएबल डिफाइन करते हो, राइट, और आप वैल्यू असाइन करते हो, लेट्स से 4, तो हार्ड डिस्क या फिर मेन मेमोरी या फिर एसएसडी में, राइट, उतना पीस ऑफ स्पेस जो होता है वो रिजर्व हो जाता है, राइट। सी वी आर नॉट सिंपली लर्निंग द पाइथन, हम ये भी समझ रहे हैं कि बैकएंड में वर्किंग भी कैसे होती है, ओके। सो दिस इज द सम सॉर्ट ऑफ डेफिनेशन ऑफ द वेरिएबल, राइट। और डिपेंड करेगा कि कितना इन्फॉर्मेशन या फिर कितना पीस ऑफ स्पेस लेगा, वो डिपेंड करेगा कि कैसा आपका डेटा टाइप है, ठीक है। सो एक बार गो थ्रू करेंगे। सम मेमोरी इज एलोकेटेड इन द स्टोरेज मेमोरी हार्ड डिस्क दिस एंड दिस, राइट, मे बी विद द नेम a इज इक्वल टू 4, ऐसा कुछ आप मान सकते हो, राइट। एंड दिस वॉज फॉर एवरी वेरिएबल इन द न्यू बॉक्स इज क्रिएटेड विद द वेरिएबल नेम जस्ट टू स्टोर द गिवन वैल्यू, राइट। So I hope now this definition is making some sort of clarity, right, कि वेरिएबल एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। नाउ जब हमने वेरिएबल समझ लिया कि भाई वेरिएबल ये होता है काइंड ऑफ एक इंफॉर्मेशन होता है, राइट, एक पीस ऑफ एक कंटेनर होता है, कंटेनर में जो भी वैल्यू होती है
वो जो होल्ड होती है उसको हम असाइन करते हैं, राइट, दैट इज कॉल्ड द वेरिएबल, राइट, जो कि एक वैल्यू को होल्ड करता है। आप नॉर्मली ये भी बोल सकते हो, राइट। कितना स्पेस लेगा वो डिपेंड करेगा कि आप कौन सा डेटा टाइप यूज कर रहे हो, सॉरी हाँ, कौन सा डेटा टाइप आप यूज कर रहे हो, वेदर यू आर यूजिंग द इंट, वेदर यू आर यूजिंग द फ्लोट, कैर और स्ट्रिंग, राइट। So this is the one thing, right? Now moving to the types of data, है ना। अब हम डेटा टाइप्स पढ़ सकते हैं। द रीजन बीइंग इज दैट जो भी हमें फाउंडेशनल जो भी बिल्डअप करना था वो हमने बिल्ड कर लिया, राइट। सो व्हाट आई डिड कि डेटा टाइप्स को मैंने मोर ओवर दो पार्ट में डिवाइड किया है, राइट। वन इज कॉल्ड द न्यूमेरिक टाइप एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड द सीक्वेंस टाइप, राइट। एंड ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कुछ आपको आसान लगेगा, मे बी कुछ आपको नया यहाँ पे सीखने के लिए मिलेगा, राइट। सो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई व्हाट इज डेटा टाइप, सो एनीवन हु वांट्स टू टेल यार डेटा टाइप्स क्या होता है? यस, नंबर, टेक्स्ट, लिस्ट एक्सेट्रा, ठीक है। या दैट मेक सेंस, ठीक है। सो अगर हम डेटा टाइप की बात करें तो किस टाइप का डेटा हम अपने वेरिएबल में होल्ड कर रहे हैं, राइट। सो उसको पता करने के लिए वी एक्चुअली यूज अ फंक्शन, राइट। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, लेट्स से मैं यहाँ पे लिखा हूँ a इज इक्वल टू 4। अगर मेरे को a का डेटा टाइप पता करना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा a एंड द टाइप एंड a दिस वन, राइट। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आ जाएगा? इंट। दैट मीन मैं कौन सा वेरिएबल होल्ड किया हूँ, जो वेरिएबल जो मेरा होल्ड किया है वो कौन सा नंबर है, वो एक्चुअली इंटीजर डेटा टाइप का है, ठीक है। फिर अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4.2, राइट, सो दिस विल बिकम फ्लोट। अगर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ लेट्स से ये, राइट, सो दिस विल बिकम कैर और स्ट्रिंग, है ना। सो ऐसे करके हम डेटा टाइप को पता कर सकते हैं। बट बिफोर गोइंग टू गेट टू नो व्हाट काइंड ऑफ डेटा वी आर सिंपली यूजिंग, राइट, और कैसे पता करेंगे, तो दिस इज द फंक्शन। इसको आप यूज कर सकते हो टाइप फंक्शन को, और इससे आपको पता लग जाएगा, राइट। बिफोर गोइंग टू दिस थिंग लेट मी जस्ट टेल यू टू डिफाइन द वेरिएबल टाइप। हाँ, क्वाइट करेक्ट। अब देखो पाइथन में हमें उतना जरूरत नहीं पड़ता है, हम डायरेक्टली वैल्यू को असाइन कर सकते हैं, राइट। बाकी C++ की बात की जाए तो वैल्यू को असाइन करने के लिए हमें डेटा टाइप पता होना जरूरी होता है कि हम कौन सी वैल्यू को डिफाइन करने जा रहे हैं, राइट। सो अगर हम बात करेंगे फर्स्ट टाइप की तो वी हैव द न्यूमेरिक डेटा, ठीक है। सो न्यूमेरिक अगर डेटा की बात करेंगे तो पाइथन सपोर्ट द सेवरल न्यूमेरिक डेटा, जैसे इंट हो गया, है ना। जैसे ये देखो, ये इंटीजर हो गया। अगर एक आप नंबर लाइन बनाओ तो नंबर लाइन में यू नो कि पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, नेगेटिव नंबर भी होते हैं, राइट। नंबर लाइन में कभी डेसिमल नंबर्स नहीं होते, अगर आपको ऐसा कुछ पता हो तो, राइट। अगर ये 0 है तो यहाँ पे 1 मिलेगा आपको, यहाँ पे -1 मिलेगा, यहाँ पे -2 मिलेगा, यहाँ पे 2 मिलेगा, एंड 3 एंड सो ऑन, राइट। सो अगर आप इंटीजर्स की देखोगे तो आइदर इट कुड बी पॉजिटिव और इट कुड बी नेगेटिव, राइट। सो उसको हम डिनोट करते हैं इन टाइप से, ठीक है। देन वी हैव द वन मोर टाइप दैट इज कॉल्ड द फ्लोट। फ्लोट क्या रिप्रेजेंट करता है? अगर आपके पास कोई भी डेसिमल वाला नंबर हो गया, ठीक है, जैसे यहाँ पे आपने लिखा a इज इक्वल टू 3.14, फिर आप इसका चेक करोगे टाइप ऑफ a, तो व्हाट इट इज गोइंग टू गिव, इट इज एक्चुअली गोइंग टू गिव यू कि भाई ये फ्लोट होता है, ठीक है। अब यहीं पे एक क्वेश्चन है मेरा कि पाइथन में डबल डेटा टाइप क्यों नहीं होता? अगर होता है तो आप बताइए कि हाँ भाई होता है, अगर नहीं होता तो क्यों नहीं होता? दिस इज योर काइंड ऑफ आप बोलो ये कि असाइनमेंट है, मैं आपसे कल की क्लास में पूछूंगा, राइट, कि डबल डेटा टाइप पाइथन में क्यों नहीं होता, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर सकते हो, राइट। देन वी हैव द कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप एज वेल। मे बी आप लोगों ने यार मैथ में पढ़ा होगा, राइट, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप, जिसमें से एक हमारे पास इमेजिनरी नंबर होता है, राइट, एक हमारे पास रियल नंबर होता है, आई होप सो, है ना। दिस इज द रियल एंड दिस इज द इमेजिनरी। तो जब कभी भी ऐसी सिचुएशन आती जस्ट टू स्टोर द इमेजिनरी एंड द रियल नंबर एज वेल, तो उसको हम होल्ड करते हैं कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप पे। ऑल दो ये आपको अभी तो यूज़ नहीं आएगा, राइट, मे बी इन फ्यूचर जब आप कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन वगैरह परफॉर्म करोगे, राइट, मोर स्पेसिफिक टू द इमेजिनरी एंड द रियल नंबर, तो मे बी उस सिनारियो में ये चीज़ आपके काम है, राइट। बट मोर ओवर आप अभी सिर्फ ये दो चीज़ याद रखो, द इंटीजर एंड द फ्लोट, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द न्यूमेरिक डेटा,
ठीक है, दिस इज कॉल्ड द न्यूमेरिक डेटा. नाउ वी आर मूविंग टू द सेकेंड टाइप, दैट इज कॉल्ड द सीक्वेंस डेटा. अब देखो सीक्वेंस डेटा में पहला हमारे पास डेटा टाइप होता है दैट इज कॉल्ड द स्ट्रिंग. नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि भाई स्ट्रिंग सीक्वेंस डेटा टाइप क्यों होता है, राइट? व्हाई वी हैव पुटेड दिस स्ट्रिंग इन अ सीक्वेंस डेटा? एनीवन हु वांट्स टू आंसर? कोई बताना चाहेगा कि इसको हम सीक्वेंस डेटा टाइप में क्यों पुट करते हैं? एनीवन? यस. ओके, सो लेट मी जस्ट टेल यू. देखो, जब आप कभी भी कोई नाम लिखते हो, राइट, या फिर जब कभी भी आप कोई स्ट्रिंग लिखते हो, तो आपको पता है कि उसमें एक सीक्वेंस होता है, राइट? और सीक्वेंस मैटर करता है. अगर आप इसके सीक्वेंस होगा चेंज कर दोगे, लेट सपोज मैं ऐसे कुछ लिख रहा हूँ, तो आपको पता है इसका पूरा जो मीनिंग होगा वो पूरा बदल जाएगा. डोंट यू थिंक सो? राइट? सो जो स्ट्रिंग होता है दिस इज द काइंड ऑफ सिक्वेंशियल डेटा, है ना, जिसमें हर एक वर्ड, हर एक अल्फ़ाबेट का अपना अपना एक पर्टिकुलर एग्जिस्टेंस होता है, उसकी अपनी प्लेस होती है, राइट? एंड दिस इज द रीजन व्हाई वी हैव पुटेड दिस स्ट्रिंग इन अ सीक्वेंस डेटा टाइप. सीक्वेंस मतलब काइंड ऑफ फ्लो, है ना, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, राइट? दैट मीन इसमें क्या होता है, सीक्वेंस डेटा टाइप रिप्रेजेंट द ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ योर गिवन आइटम, राइट? कि भाई पहले एन आएगा, फिर आई आएगा, फिर एल आएगा, फिर इसके बाद ई आएगा, राइट? अगर आपको सही मीनिंग चाहिए. इफ़ यू डोंट वांट टू गेट द मीनिंग तो फिर वो अनऑर्डर्ड अब में आप पुट कर सकते हो, राइट? वो अभी हम नीचे देखेंगे कि भाई अनऑर्डर्ड क्या होता है, ठीक है? सो स्ट्रिंग इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल वी हैव ऑफ द सीक्वेंस डेटा टाइप, राइट? अब हम स्ट्रिंग को कैसे लिख सकते हैं? तो देखो द सेम थिंग, जैसे हमने कमेंट्स की बात करी थी, इन अ सिमिलर वे हम स्ट्रिंग को भी लिख सकते हैं, राइट? So you can just see over here, string can be written inside the single quote, double quotes, right? Or you can write in the triple quotes as well, right? ठीक है, जैसे हमने कमेंट्स देखा था, सिंगल कोट, डबल कोट, ट्रिपल कोट, और यहाँ पे भी सेम रीजन है ना? जैसे आपने यहाँ पे लिखा आकाश होम, राइट? सो अगर आप इसको सिंगल कोट से लिखोगे तो अगेन इट विल क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ एम्बिग्यूटी. तो व्हाट वी डू, वी कैन जस्ट एनक्लोज दिस एंटायर स्ट्रिंग इन अ डबल कोट, or either you can enclose this entire string in a triple quotes. I hope this thing is making sense, right? So अगर मैं यहाँ पे कोई एग्जांपल ले लूँ, let's say मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेलकम टू हाइजन लैब्स, राइट? आप मेरे को बताइए क्या ये सही लिखा है, क्या ये काम करेगा? वेलकम टू हाइजन लैब्स, एनीवन? यू कैन जस्ट से यस नो समथिंग, ऐसा करके कुछ. नो, राइट? सो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें आइदर वी कैन पुट द डबल कोट्स और वी कैन जस्ट गो विद द ट्रिपल कोट्स, है ना? सो आई होप नाउ यू आर गेटिंग द रीजन, राइट? कि भाई जो सिंगल कोट्स होते हैं, डबल कोट्स होते हैं, और जो ट्रिपल कोट्स होते हैं, ये क्यों एग्जिस्ट करते हैं, राइट? दिस इज द मेजर रीजन, है ना? सो इवन यू कैन जस्ट सी ओवर हियर, स्ट्रिंग का ये हो गया. अब स्ट्रिंग में एक और फंक्शनैलिटी होती है दैट इज कॉल्ड द स्लाइसिंग, है ना? सो अगर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, लेट मी जस्ट जूम ओवर हियर. सो देखो यहीं पे मैं आपसे फटाफट इनपुट पूछूंगा, यू जस्ट टेल मी कि आउटपुट क्या आएगा, है ना? कुछ मेरे पास प्रिंट स्टेटमेंट है यहाँ पे, एंड एक मेरे पास स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग में लिखा है वेलकम टू पाइथन, राइट? सो देखो हमेशा याद रखिए कि स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग होती है ना? इंडेक्सिंग इन द सेंस हर एक कैरेक्टर को हम नंबरिंग देते हैं, राइट? एंड नंबरिंग यूजुअली स्टार्ट विद द जीरो, ओके? अगर हम राइट साइड से जाएंगे तो नंबरिंग हमारी जीरो से स्टार्ट होती है, अगर हम लेफ्ट साइड से जाएंगे तो नंबरिंग -1 से स्टार्ट होती है. पाइथन ही एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें दोनों तरफ से इंडेक्सिंग पॉसिबल होती है, राइट? मतलब C++, जावा से बात करोगे तो उसमें बैक साइड से इंडेक्सिंग पॉसिबल नहीं होती है, ठीक है? सो अगर मैं इसको इस साइड से अगर मैं इंडेक्सिंग करूंगा राइट साइड से, सो W को मैं दूंगा 0, देन 1, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5, देन 6, देन एक स्पेस है तो ये भी आएगा 7, देन 8, देन 9, देन अगेन एक स्पेस है तो इसको दूंगा 10, देन 11, देन 12, देन 13, देन 14, देन 15 एंड देन 16, राइट? सो आई होप ये आपको क्लियर दिख रहा होगा. लेट मी जस्ट रिपीट वन मोर टाइम.
W को 0, E को 1, L को 2, C को 3, O को 4, M को 5, E को 6, स्पेस है, दिस इज द स्पेस, राइट। ये जो है यहाँ पे दिस इज द स्पेस ओवर हियर, ठीक है, ये स्पेस है। इसको 7, देन 8 को 8 सॉरी T को 8, देन 0 को 9, देन स्पेस को अगेन 10, देन वी हैव P को 11, Y को 12, T को 13, H को 14, O को 15 एंड N को 16, ठीक है। और ये आपके सिंगल कोड्स हैं, इनको कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि ये डिफाइन कर रहे हैं कि भाई ये आपका स्ट्रिंग है, राइट। फिर अगर मैं नेगेटिव इंडेक्सिंग की बात करूँ तो नेगेटिव इंडेक्सिंग आपकी यहाँ से स्टार्ट होगी -1, -2, -3, -4, -5, -6, दिस इज -7, दिस इज -8, दिस इज -9, दिस इज -10, दिस इज -11, -12, -13, -14, -15, -16 and -17, right. So this is the kind of negative indexing, right, this is called the negative indexing. So इसको याद रखिएगा कि पाइथन आपको नेगेटिव इंडेक्सिंग भी सपोर्ट करता है, राइट, एंड दिस इज कॉल्ड द पॉजिटिव इंडेक्सिंग, जिसमें सारे इंडेक्सिंग के नंबर कैसे होंगे, आपके पॉजिटिव होंगे, ठीक है, राइट। ओके, नाउ लेट मी जस्ट आस्क यू द फर्स्ट स्टेटमेंट, प्लीज थोड़ा जल्दी जल्दी रिप्लाई करिएगा सो वी कैन जस्ट मूव फॉरवर्ड एज वेल, राइट। फर्स्ट वाले का आउटपुट क्या आएगा, प्रिंट एस, फर्स्ट का आउटपुट क्या आएगा आपके हिसाब से, यस, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फर्स्ट वन, हाँ, प्रिंट फुल स्ट्रिंग, ठीक है, यहाँ पे पूरा आ जाएगा वेलकम टू पाइथन, ठीक है, दैट इज वेरी करेक्ट, ठीक है। नाउ मूविंग टू द सेकेंड वन, प्रिंट एस ऑफ 0। देखो, जब आप कभी भी इंडेक्स की हेल्प से किसी भी कैरेक्टर को रिट्रीव करना चाहते हो, राइट, या फिर एक सेट ऑफ सब स्ट्रिंग को रिट्रीव करना चाहते हो, तो उसको आप कैसे रिट्रीव करोगे, यू सिंपली राइट ओवर हियर स्ट्रिंग का जो भी वेरिएबल है, देन यू विल सिंपली राइट उसका इंडेक्सिंग, राइट। अगर आपने लिखा एस ऑफ 0, दैट मीन 0 इंडेक्स पे जो भी कैरेक्टर है मैं उसको रिट्रीव करना चाहता हूँ, राइट। तो 0 इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर था, W, राइट। सो दिस इज द आउटपुट, ठीक है। सो आई गेस इसका आउटपुट क्या होगा, द आउटपुट विल बी W ओवर हियर, ठीक है। नाउ लेट मी जस्ट आस्क यू द लास्ट वन, इसका बताएं, इसका आउटपुट क्या होगा, S ऑफ -1, S ऑफ -1 का आउटपुट क्या होगा आपके अकॉर्डिंग, एग्जैक्टली, सो दिस इज गोइंग टू बी N, है ना। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंडेक्सिंग बोथ, राइट। ओके, नाउ अब देखो एक और चीज होती है, दैट इज कॉल्ड द स्लाइसिंग। ये जो लिखा है ना, दिस इज कॉल्ड द स्लाइसिंग, है ना, काफी इंपॉर्टेंट है, नॉट द W नील, राइट, W नहीं होगा क्योंकि देखो इसमें -1 लिखा है, -1 इन द सेंस आप पीछे से जाओगे, है ना, और पीछे से जब आप जाओगे नेगेटिव इंडेक्सिंग से, तो आप देखोगे -1 N को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। सो okay, so this is the one thing. Now let me just tell you one more concept that is called the substring, right, कि भाई सबस्ट्रिंग कैसे निकालते हैं। अगर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, लेट्स से मेरे पास S लिखा है और यहाँ पे एनी नेम आई कैन जस्ट टेक ओवर हियर, लेट्स से मैं यहाँ पे लेता हूँ सुजल, ठीक है, एंड आई एम जस्ट राइटिंग ओवर हियर S, राइट, देन फिर मैं लिखूंगा 2 कोट्स, दैट्स इट, ठीक है, सिर्फ मैं इतना लिख रहा हूँ और मैं इसको प्रिंट कराता हूँ। सो आपके हिसाब से बताएं इसका आउटपुट क्या होगा, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस वन, यस एनीवन, आई गेस। देखो, अब देखो इसको थोड़ा सा और सही से करते हैं, तो ये आपका स्टार्टिंग होता है, दिस इज योर स्टार्टिंग इंडेक्स, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं एंडिंग इंडेक्स, ये एंडिंग वाला इंडेक्स हो जाएगा, एंड दिस इज योर स्टार्टिंग इंडेक्स, राइट। सो जब कभी भी कुछ भी नहीं लिखा होता, राइट, जब कभी हम कुछ भी डिफाइन नहीं कर सकते हैं, तो
तो उस मोमेंट पे ये माना जाता है कि ये स्टार्टिंग से लेके हम एंडिंग तक पूरा जाएंगे, राइट। सो द आउटपुट विल बी सूजल, राइट, होल स्ट्रिंग, राइट। अगर लेट सपोज कि मैं यहाँ पे इंडेक्सिंग कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। लेट सपोज मैं यहाँ पे इंडेक्सिंग करता हूँ 1 से लेके कोलन, फिर इसके बाद मैंने कुछ भी नहीं लिखा। सो व्हाट विल बी द आउटपुट? आप यहाँ पे इंडेक्सिंग भी कर सकते हो 0 1 2 3 एंड 4। एनीवन हु वांट्स टू टेल कि भाई अब इसका आउटपुट क्या होगा? सो देखो, अब स्टार्टिंग करेंगे यहाँ से, राइट। सो द आउटपुट विल बी UJAL, नॉट द होल स्ट्रिंग, नॉट द होल स्ट्रिंग। इस केस में होल स्ट्रिंग नहीं आएगा क्योंकि अब हम स्टार्टिंग कर रहे हैं हमारे 1 इंडेक्स से, राइट। ओके, या ओके, नाउ लेट मी जस्ट राइट ओवर हियर 4। लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे एंडिंग में लिख देता हूँ 4। सो अब आप मेरे को बताओ कि अब इसका आउटपुट क्या होगा? एग्जैक्टली, राइट। क्यों? देखो, एक चीज याद रखिएगा, हमेशा जब आप कभी भी इंडेक्सिंग करते हो तो इसको हम कंसिडर करते हैं, जो भी नंबर यहाँ पे हम लिखते हैं, राइट, यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन जब हम एंडिंग की बात करते हैं तो एंडिंग में हमेशा -1 तक हम जाते हैं। अगर यहाँ पे 4 लिखा है, दैट मीन हम कहाँ तक जाएंगे? सिर्फ 3 तक जाएंगे, ठीक है। स्टार्टिंग हमेशा आपका यहाँ से होगा और एंडिंग आपका कहाँ से होगा? 4 - 1। दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, मतलब यहाँ पे मे बी आपको कंफ्यूजन हो रही है, राइट। आई कैन जस्ट सी ओवर हियर, राइट। सो दिस विल बी नॉट उजल, राइट, दिस विल बी दिस वन, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप इस चीज को याद रखेंगे, ठीक है। तो जब कभी भी लास्ट इंडेक्स की अगर आप बात करते हो, जो भी एंडिंग इंडेक्स होता है, तो एंडिंग इंडेक्स तक हम पूरा नहीं जाते। व्हाट वी डू, हम एक -1 तक जाते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों? द रीजन बीइंग इज दैट कि इंडेक्सिंग आपकी 0 से स्टार्ट होती है, राइट। सो दिस इज द मेजर रीजन ओवर हियर, ठीक है। सो आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। तो आप फटाफट इन क्वेश्चंस का भी आंसर करोगे। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस वन यार? प्रिंट S 3:7। Yes, anyone? What will be the output of this one? आई गेस देखो 3:7, दैट मीन C से स्टार्ट करोगे आप, C से, और कहाँ तक जाओगे? 7 आपका क्या है? आई गेस 7 स्पेस है, राइट। द आंसर विल बी कम, है ना। फिर अगर हम बात करते हैं 11 से, तो 11 कोलन कुछ भी नहीं इन द सेंस लास्ट तक जाना है आपने। सो 11 इज दिस वन, मतलब स्टार्ट करोगे पाइथन से, राइट, P से, तो आंसर विल बी पाइथन। सो आई होप आपको सब स्ट्रिंग का भी कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, राइट। व्हाट इज इंडेक्सिंग एज वेल, राइट, होपफुली, है ना। ओके, दैट मेक्स सेंस, है ना। नाउ मूविंग टू दी वन मोर थिंग, लेट्स से एक और ऑपरेटर है, राइट, रिपीटिशन ऑपरेटर, इसको भी देख लेते हैं क्विकली। सिर्फ दिस इज द काइंड ऑफ नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा। द रिपीटिशन ऑपरेटर इज डिनोटेड बाय एस्ट्रिक, ठीक है, एस्ट्रिक होता है। और ये क्या करता है? अगर आपको कोई भी स्ट्रिंग मल्टीपल टाइम प्रिंट करनी होती है, राइट, लेट्स से मेरे को पाइथन लिखा है और मैं पाइथन को 5 बार प्रिंट करना चाहता हूँ, राइट। सो व्हाट आई विल डू, लेट्स से ये मेरा S में होल्ड है, राइट, इसको मैं S में होल्ड करा लेता हूँ सिंगल कोट्स के अंदर। सो दिस इज माई पाइथन इन अ सिंगल कोट। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा S × 5, तो ये आउटपुट में क्या देगा? विदाउट एनी स्पेस पाइथन, देन अगेन पाइथन, देन अगेन पाइथन, राइट, देन अगेन पाइथन, और एक बार और पाइथन, विदाउट एनी स्पेस, ठीक है। सो अगर आप देखो एट द टाइम, ठीक है, जब आप हो जाओगे 50s के 60s के, राइट, तो आप क्या लिखोगे? राम राम लिखोगे। तो राम एक बार लिखने का, है ना, सिंगल कोट्स में डालो S, और इसको कितनी बार लिख दो? 1000 टाइम, ठीक है। सो बीइंग अ डेवलपर आप ऐसे राम राम लिखोगे अपनी बुक पे। आई होप बात समझे आप लोग, है ना। ओके, सो दिस इज कॉल्ड द रिपीटिशन। नाउ वी हैव वन मोर डेटा टाइप, दैट इज कॉल्ड द लिस्ट, है ना। लिस्ट देखो एरे जैसा होता है, लेकिन थोड़े से डिफरेंसेस होते हैं लिस्ट में, राइट, एज कंपेयर टू दी एरे। सो एनीवन हु वांट्स टू टेल? ओके, चलो मैं बताता हूँ पहले, देन वी विल कम्स टू दी सम सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। सो देखें, ध्यान से देखिएगा, डेफिनेशन गो थ्रू करेंगे। लिस्ट इन पाइथन आर सिमिलर टू दी एरे इन C और द जावा, राइट। लिस्ट रिप्रेजेंट द ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, राइट,
कि देखो वेरिएबल में क्या होता है यार, वेरिएबल में जैसे a इज इक्वल टू 4 है ना, वेरिएबल को मान लो आप ग्लास, राइट, कि ये ग्लास में सिर्फ आपने सिर्फ 4 को होल्ड कर पा रहे हो बस, और कुछ नहीं। लेट से एट अ मोमेंट आपको 10 नंबर होल्ड करने हैं, राइट, तो क्या करोगे, राइट, तो उसके लिए आप 10 वेरिएबल थोड़ी ना बनाओगे, है ना। लेट से आपको 1 से लेके 10 तक आपने नंबर्स को होल्ड करने हैं, तो आप 10 वेरिएबल तो नहीं बनाओगे, राइट। तो उसके लिए एरे या फिर लिस्ट का कंसेप्ट आता है, राइट, ठीक है। ये क्या करता है एक्चुअली में, ये डेटा टाइप आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है दैट यू कैन एक्चुअली होल्ड द मल्टीपल्स नंबर्स, राइट, you can say the multiple numbers or the multiple data, right, of the different different data types या फिर similar data types के, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे एक बना लेता हूँ लिस्ट L नाम से, तो यहाँ पे I can just simply hold 1 2 3 4 5 then 6 then 7 then 8 and then 9 and then 10। तो ये क्या हो जाएगा, अगर आप इसका टाइप चेक करोगे तो द टाइप ऑफ दिस L is going to be your list over here, ठीक है। सो आई होप ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो एक डिफरेंस होता है एरे और लिस्ट में, क्या होता है, द मेन डिफरेंस बिटवीन द एरे एंड द लिस्ट इज दैट लिस्ट कैन स्टोर द डिफरेंट डेटा टाइप्स ऑफ द एलिमेंट, राइट। सो अगर मैं आपको थोड़ा सा सही से बताऊं, सो अगर हम एरे की बात करते हैं, ठीक है, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक एरे बना रहा हूँ। अब एरे में क्या होगा, 1 होगा, सॉरी हाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज योर काइंड ऑफ कैरेक्टर, राइट, जो कि 1 को होल्ड कर रखा है, फिर ये 2 होगा, फिर ये 3 होगा, फिर ये 4 होगा, राइट। सो आप देखो इसमें सिमिलर डेटा टाइप्स हैं, तो ये डेटा टाइप कैसे हैं, सारे आपके कैर हैं, क्योंकि सिंगल कोट्स में है ना। अगर आप इसको ये कर दो, ये हटा दो, तो क्या ये एरे होगा? जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्या ये सही फॉर्मेट लिखा है एरे का? यस, एनीवन? आई गेस नो, है ना। इसका आंसर क्या होगा? नो। क्यों? क्योंकि एरे कभी भी डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स को होल्ड नहीं कर सकता, राइट। उसके पास जो सारे डेटा टाइप्स होने चाहिए दैट शुड बी द सेम। बट अगर हम लिस्ट की बात करते हैं तो लिस्ट में ये चीज़ पॉसिबल है ना। लिस्ट में आप एक कैरेक्टर होल्ड करा सकते हो एट अ मोमेंट, आप एक नंबर होल्ड करा सकते हो, आप एक फ्लोटिंग पॉइंट वाला नंबर होल्ड करा सकते हो, आप स्ट्रिंग को होल्ड करा सकते हो, राइट। यू कैन होल्ड एनीथिंग, right, even you can hold the complex number as well or anything, right, and this is the major difference between the array and the list, right। array में आप similar element को hold कराओगे similar data types के, but if we talk about the list, तो list में आप different data types के element को hold करा सकते हो, ठीक है। so I hope this, please इससे आप confuse मत होइएगा। देखो मैंने single quotes में number लिखा है तो ये character ऐसा treat होता है, ठीक है। अगर सिंगल कोट्स में नंबर लिखा है तो ये कैरेक्टर ही होगा, राइट, दिस इज नॉट अ नंबर, ठीक है। सो यहाँ पे सिर्फ मैं आपको ये बताना चाहता था कि एरे कुड नॉट होल्ड द डिफरेंट डेटा टाइप बट द लिस्ट कैन होल्ड एक्चुअली द डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप, ठीक है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लिस्ट, है ना। जैसे ये देखो एग्जाम्पल, राइट। और वन मोर थिंग इज दैट की जो लिस्ट होते हैं वो म्यूटेबल होते हैं। एनीवन हु वांट्स टू टेल यार म्यूटेबिलिटी भी क्या होती है? ये म्यूटेबिलिटी प्रिंसिपल क्या होता है? म्यूटेबल मतलब क्या होता है? ओके, सो देखो अगर हम म्यूटेबिलिटी की बात करेंगे, सो म्यूटेबिलिटी इन द सेंस कि आप उस वैल्यू को चेंज कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आऊँ, देखो अगर मैं यहाँ पे, ये मेरी लिस्ट है, लिस्ट में लिखा है 1, दिस इज योर कैरेक्टर, राइट, कैन नॉट चेंज द वैल्यू, नहीं सुजल ये उल्टा आपने बोल दिया। म्यूटेबल मतलब आप वैल्यू को चेंज कर सकते हो, नो इम्यूटेबल मतलब आप वैल्यू को चेंज नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो अगर लिस्ट की बात करें तो लिस्ट में हम वैल्यूज को चेंज कर पाते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा लिस्ट और इंडेक्स पे जाता हूँ 0, देखो ये 0 इंडेक्स होगा। अब लिस्ट में भी वही सेम फंक्शन है जैसे स्ट्रिंग में था, जैसे स्ट्रिंग में हर चीज़ 0 से स्टार्ट होती थी, पहला कैरेक्टर 0, फिर दूसरा कैरेक्टर 1, सो ऑन एंड सो ऑन। तो लिस्ट में अगर हम इंडेक्सिंग करेंगे तो ये 0 इंडेक्स पे होगा, ये 1 इंडेक्स पे होगा, ये 2 इंडेक्स पे होगा, 3 इंडेक्स पे होगा। लेट सपोज यहाँ पे लिखा है स्ट्रिंग और मैं इसकी जगह लिखना चाहता हूँ क्या, लेट सपोज मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ सुजल, राइट। तो मैं क्या लिखूंगा, लिस्ट 3rd इंडेक्स और यहाँ पे मैं क्या पास करूंगा डबल कोट्स में, लेट्स से सुजल,
ठीक है, हाँ चेंजेबल होता है, राइट। सो इसका आउटपुट क्या आएगा, तो इसमें दिखेगा आपको लिस्ट, और लिस्ट में क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, फिर इसके बाद 1 मिलेगा, फिर इसके बाद 2.34 मिलेगा, देन आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, सूजल। दैट मीन लिस्ट आपके क्या होते हैं, म्यूटेबल होते हैं। हाउ यू कैन डू द म्यूटेबिलिटी, बाय यूजिंग द इंडेक्सिंग ओवर हियर, राइट। सो इंडेक्सिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो आई होप दिस थिंग इज ऑल्सो क्लियर, है ना। अब हम बात करते हैं टपल। देखो अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन होगा, राइट। अगर हम बात करेंगे टपल की, तो टपल्स क्या होते हैं, टपल इज मच मोर सिमिलर टू दी लिस्ट, बट यहाँ पे इम्यूटेबिलिटी होती है। अब इनको आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे क्या, जैसे आपने आधार नंबर, क्या आपका आधार नंबर आप चेंज कर सकते हो, बताएं यार। क्या आप अपने व्हीकल का नंबर चेंज कर सकते हो, यस, आई गेस नो, है ना। इनको आप चेंज नहीं कर सकते, राइट। तो ये सारी कैसी चीजें होती हैं, दीज आर कॉल्ड द इम्यूटेबल, ठीक है, राइट। इवन अगर मैं नेम लूँ ना, तो नेम भी कुछ बच्चे अपना नाम भी बदल लेते हैं, है ना। मतलब आई हैव सीन सम ऑफ माई फ्रेंड जो कि अपना नाम भी बदल लेते हैं, है ना। मतलब 4th 5th क्लास में एक बच्चे ने, जो मेरा फ्रेंड था, उसने अपना नाम भी बदल लिया था। उसका नाम कुछ और था, उसने अपना नाम अंशुल रख लिया, है ना। तो उसके घर वालों को बाद में पता चला कि इसका नाम अंशुल है ना। तो वो कौन सा सिनारियो हो गया, वो सिनारियो हो गया म्यूटेबिलिटी का, राइट। सो आई गेस ये चीज़ भी क्लियर होगी आपको, राइट। और जो टपल्स होते हैं, टपल्स को हम लिखते हैं किसमें, दीज ब्रेसेस, है ना, इस ब्रेसेस के अंदर हम लोग लिखते हैं। और जो लिस्ट होता है, लिस्ट को हम लोग लिखते हैं स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर, ठीक है। सो दिस इज द मेजर रीजन। अब ये भी चीज़ों को ये भी कंटेनर एक तरह से जो कि मल्टीपल वैल्यूज को होल्ड करेगा, राइट। और दिस इज द काइंड ऑफ डिफरेंस, है ना। अब हमारे पास एक और चीज़ आता है, दैट इज कॉल्ड द रेंज, राइट। अब देखो फॉर लूप में जाएंगे, वहाँ पे रेंज आएगा, राइट। सो रेंज को हम पहले यहाँ पे पढ़ेंगे, फिर आपको देखो फॉर लूप इतने अच्छे से समझ में आएगा, राइट, कि सिर्फ आप फॉर लूप यूज़ नहीं करोगे, आप फॉर लूप में मल्टीपल चेंजेस भी कर सकते हो एट अ मोमेंट में, राइट। सो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ रेंज, राइट, और यहाँ पे लिखता हूँ 1 से लेके 10, सो कोई मुझे बताएगा कि यार इसका आउटपुट क्या आएगा, एनीवन? Yes, what will be the output of this one? Okay, so इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट होगा 1, एक लिस्ट बन जाएगी, है ना। 1 2 3 देन 4 देन 5 देन 6 देन 7 देन 8 एंड देन 9, फिर 9 तक जाएगा, 10 तक जाएगा। व्हाट यू से, 10 तक जाना चाहिए कि 9 तक जाना चाहिए? एक बार फिर चेक करो आप लोग, क्या 10 तक जाता है कि 9 तक जाता है ये? राइट, ये 9 तक जाएगा। सेम वही इंडेक्सिंग वाला कंसेप्ट लगेगा, वही स्लाइसिंग वाला, राइट, कि आप लास्ट वाले तक नहीं जाओगे, राइट। इट विल गो टिल n-1, जो भी आपका लास्ट इंडेक्स है ना, टिल 9 तक जाएगा, ठीक है। अब देखो जब आप फॉर लूप लगाते हो पाइथन में, राइट, मैं यहीं पे आपको बता देता हूँ। तो जब आप फॉर लूप लगाते हो तो आई गेस आप ऐसे लिखते हो, फॉर आई इन रेंज, ऐसा कुछ लिखते हो अगर आपको याद हो, राइट। और यहाँ पे आप डिफाइन करते हो 10, देख रहे हो आप, ये आप इस फंक्शन को यूज कर रहे हो, राइट, सिंपली यू आर यूजिंग दिस फंक्शन। और ये जो रेंज वाला फंक्शन होगा, ये क्या देगा, ये आपको नंबर्स देगा, राइट। और ये सारे नंबर्स आप बारी बारी से कहाँ पे होल्ड करा रहे हो, आप आई पे होल्ड कराओगे, राइट। आई एक बार में 1 निकालेगा, फिर 2 निकालेगा, फिर 3 निकालेगा, फिर 4 5 देन 6 देन 7 देन 8 एंड देन 9, राइट। और देखो ऐसे आपका फॉर लूप बनता है। आई होप यू आर गेटिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ रेंज फंक्शन, है ना। अगर आप स्टार्टिंग से कुछ भी नहीं डिफाइन करोगे तो इट इज एक्चुअली गोइंग टू स्टार्ट विद दी 1, राइट, टिल योर रेंज, जो भी आप लास्ट इंडेक्स यहाँ पे डिफाइन करोगे। और ये कब तक जाएगा, n-1 तक। लेट्स से n इज इक्वल टू 10 है आपका, ठीक है। सो आई होप ये भी समझ में आ रहा होगा कि हम रेंज को फंक्शन से कैसे कोरिलेट कर सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो सिर्फ हमें पाइथन पढ़ना नहीं है, सिर्फ समझना भी है, राइट, कि ऐसा क्यों होता है, व्हाट इज द डिफरेंस, राइट। ओके, सो अगर हम चलते हैं वापस से रेंज में। सो देखो कुछ यहाँ पे इनपुट है ना, तो आप इसका आउटपुट बताओ। देखो
रेंज में जो भी वैल्यू आई उसको हमने किस में डाल दिया, लिस्ट में डाल दिया, राइट। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, वही 1 2 3 देन 4 देन 5 देन 6 देन 7 देन 8 एंड देन 9। ठीक है, आप इसका आउटपुट बताएं यार, इसका आउटपुट क्या आएगा, 1 से 9, ठीक है, सेम चीज आएगा। ठीक, इसका आउटपुट बताएं लास्ट वाले का, लास्ट वाले का आउटपुट क्या आएगा, ओके। देखो लास्ट वाले में क्या है कि आपको यहाँ पे 3 पैरामीटर दिख रहे होंगे, है ना। 2 पैरामीटर मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ स्लाइसिंग के कंसेप्ट में, लेकिन एक और पैरामीटर यहाँ पे मैं बताता हूँ, दैट इज कॉल्ड दी जंप। इसको हम लोग जंप बोलते हैं, इसको हम लोग स्ट्राइड भी बोलते हैं, राइट, कि कितने कितने का आप जंप ले रहे हो, या फिर आप इसको स्टेप भी बोलते हो, राइट, वेरी करेक्ट, है ना। सो जब हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, जस्ट अ मोमेंट, एक मिनट देना यार, है ना, गिव मी अ मोमेंट। हाँ ओके, सो या सो ये जो तीसरा पैरामीटर होता है, इस तीसरे पैरामीटर को व्हाट वी कॉल इट जंप, राइट, स्ट्राइड, या फिर हम इसको बोलते हैं काइंड ऑफ जंप स्ट्राइड, या फिर आप बोल लो स्टेप। ठीक है, सेम चीज स्लाइसिंग में भी पॉसिबल है ना। स्लाइसिंग में हमने वहाँ पे 2 पैरामीटर देखे थे, स्टार्टिंग और एंडिंग। तो देखो ये आपका स्टार्टिंग हो गया, और ये क्या है आपका, दिस इज योर एंडिंग। अब कितने कितने का जंप लेना है, 2 2 का जंप लेना है, राइट। सो अगर आप इसको यहीं से देख लो, देखो यहीं से ले लो, यहाँ से स्टार्ट करोगे, 2 का जंप करोगे 3 आएगा, फिर 2 का जंप करोगे 5 आएगा, फिर 2 का जंप करोगे 7 आएगा, फिर 2 का जंप करोगे तो 9। सो व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस वन, द आउटपुट विल बी 1 3 5 7 एंड 9, राइट। सो देखो ये तो बहुत ही आसान है, लेकिन जब मैं आपको लेट सपोज पांडास नमपाई में ले जाऊंगा, तो वहाँ पे 3D में स्लाइसिंग करना, 3D मैट्रिक्स में, 2D मैट्रिक्स में स्लाइसिंग करना, राइट, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो ये कंसेप्ट आपको काफ़ी अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। देन एक और कंसेप्ट हमारे पास आता है, एक और डेटा टाइप है बाइट्स, राइट। बाइट्स कुछ और नहीं, काफ़ी आसान है। देखो एक बार डेफिनेशन गो थ्रू करेंगे तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि बाइट्स क्या होता है। सी बाइट्स इवेंचुअली रेंज को कंट्रोल करता है, राइट। अगर आप नंबर एक गिवन रेंज से ज़्यादा दे देते हो तो उसको वो ओमिट कर देता है, उसको एरर शो कर देगा, ठीक है। सो अगर हम डेफिनेशन देखते हैं, द बाइट नंबर इज द पॉजिटिव इंटीजर फ्रॉम 0 to 255 inclusive, right. Bytes array can store the number from 0 to 255 inclusive, 0 also inclusive, right. It cannot be negative number। जैसे अगर मैं देखो यहाँ पे मैंने पीस ऑफ कोड लगा रखा है, सो अगर आप देखोगे इसका, सो मैंने लिखा 0 23 134 67 और 32, ये मेरा एक लिस्ट है। अब इस लिस्ट को मैं डालूंगा बाइट्स के अंदर, ठीक है। सो बाइट क्या करेगा, इसको प्रोसेस करेगा, फिर मैं इसको x को प्रिंट करा रहा हूँ, x इज माई ऑब्जेक्ट। देखो पाइथन में हर चीज ऑब्जेक्ट होती है, राइट। जो आप वेरिएबल बोलते हो दैट इज ऑल्सो द ऑब्जेक्ट, एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट इन पाइथन, राइट। सो अगर आप देखो इस गिवन x को अगर आप प्रिंट कराओगे 1 by 1 फॉर i इन रेंज प्रिंट ऑफ i, राइट, तो आपको ये सारे नंबर्स आउटपुट में दिखेंगे, होप सो, राइट। लेट्स से कि मैं यहाँ पे एक नंबर को इस रेंज के बाहर लिख देता हूँ, है ना। सो देखो यहाँ पे देखोगे ये वाला आउटपुट 0 23 134 67 32 एंड 456। सो देखो जैसे 456 आ गया, जो कि 0 से लेके 255 की रेंज को क्या कर रहा है, इट इज़ वॉयलेटिंग, आई होप सो, है ना। जब ये वॉयलेट कर रहा है, सो आप देखोगे यहाँ पे क्या आ रहा है, एरर आ रहा है, राइट। ये देखो यहाँ पे एरर आ रहा है, बाइट मस्ट बी इन द रेंज ऑफ 0 to 256। 250 देखो ये ब्रेसेस लगा है, मतलब ये इसको एक्सक्लूड करेगा। जो वो सबस्ट्रिंग वाला कंसेप्ट था, रेंज वाला कंसेप्ट था, अगर आप याद करो तो, है ना, सेम वही कंसेप्ट यहाँ पे लिखा है। दैट मीन 0 से लेके 255 तक ये होना चाहिए, ठीक है भाई। आई होप इतना समझ में आ गया आप लोग को, राइट। सो ये भी पूछा जाता है इंटरव्यूज में क्वेश्चन, क्योंकि मतलब काफ़ी लोगों को पता नहीं होता व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बाइट्स एंड बाइट्स एरे। अब देखो बाइट्स एरे आ गया, अब बाइट्स एरे क्या बोलेगा, बाइट्स एरे डेटा टाइप इज सिमिलर टू द बाइट। जैसे बाइट हमारा काम करता है,
ओनली डिफरेंस इज दैट बाइट टाइप ऑफ एरे कैन नॉट मॉडिफाई बट द बाइट एरे कैन बी मॉडिफाइड. ठीक है, एक म्यूटेबल होता है, दूसरा इम्यूटेबल होगा, दैट्स इट. बाकी दोनों में कुछ भी अंतर नहीं है. ठीक है, सो दिस इज द मेजर डिफरेंस. जैसे आप यहाँ पे जाओगे तो देखो इसमें लिखा है 0, 23, 134, 67 एंड 32, राइट. सो दिस इज योर इनपुट. मॉडिफिकेशन इसमें हम कर सकते हैं बाइट एरे में. तो देखो ये 0 हो गया, 0 आपका क्या बन गया, 10 बन गया, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर सेम, बट दिस इज द ओनली डिफरेंस. अगर आप बाइट्स में सेम चीज काम करोगे तो बाइट्स इज एक्चुअली गोइंग टू गिव यू दी एरर, राइट. इसमें म्यूटेबिलिटी सपोर्टेड नहीं है. दिस इज द ओनली डिफरेंस, राइट. एंड कभी कभी ये क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, राइट. अगर भाई देखो आपका इंटरव्यू पर डिपेंड करता है कि फिर पेपर कौन सेट कर रहा है. अगर ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जस्ट टू चेक कि भाई बंदे को कितनी डेप्थ नॉलेज है ना. देखो मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, ऊपर ऊपर से पढ़ने से इंटरव्यूज नहीं निकलते हैं, है ना. टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, कि अगर आपको लग रहा है कि लिस्ट टपल आपको पता है तो ऐसे इंटरव्यू नहीं निकलेंगे. अगर आपको कुछ अलग करना है तो आपको बहुत ही अलग मेहनत करनी पड़ेगी, राइट. सो और काफ़ी डेप्थ में चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा. मतलब आपने देखा होगा यूट्यूब वगैरह में 10-15 मिनट के वीडियोस होते हैं, राइट. सो उससे यार देखो आप सिर्फ नॉलेज ले सकते हो, इंटरव्यूज उससे नहीं निकलेगा, राइट. दैट आई कैन जस्ट गारंटी दिस थिंग, राइट. ओके, मतलब आपको देखो बैठना पड़ेगा चीज़ों को लेके, है ना. जितना समय दोगे उतना चीज़ें आपके पास आएंगी, राइट. उतना आप उतने डेप्थ में जाओगे. ठीक है, फिर हम बात करते हैं बुलियन टाइप की. तो बुलियन भी आपने सुना होगा काफ़ी ज़्यादा. बुलियन काफ़ी पॉपुलर है, जो कि आपको रिजल्ट देता है किसमें, ट्रू या फिर फॉल्स में. ठीक है, ये भी एक वन ऑफ द डेटा टाइप है, राइट. और ट्रू मतलब 1 होता है, फॉल्स मतलब 0 होता है. ठीक है, अगर आपको इनफाइनाइट लूप वगैरह चलाना होता है तो व्हाट वी डू, वी सिंपली राइट वाइल ट्रू. मे बी आपने कभी ऐसा सुना होगा, है ना. एक इनफाइनाइट वाइट लूप आपका चलता रहेगा जब तक ये कहीं की बीच की कंडीशन ब्रेक नहीं होती है, राइट. फिर इसके बाद देन वी हैव द सेट. देखो सेट क्या करता है, सेट एक्चुअली में डुप्लीकेट्स को हटाता है, राइट. अगर आपके पास, अगर मान लो आपको एक मैंने क्वेश्चन दिया 1 1 देन 2 देन 3 देन 4 और मैंने बोला कि भाई इससे डुप्लीकेट्स एलिमेंट को हटा के प्रिंट करो, तो आप क्या करो, इस लिस्ट को सेट बना दो. जैसे आप लिस्ट को सेट बनाओगे तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 1 2 3 एंड 4, है ना. तो सेट आर दी अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट, इट डज नॉट एक्सेप्ट द डुप्लीकेट्स वैल्यूज. देखो इसमें क्या लिखा है, दिस इज द अनऑर्डर्ड कलेक्शन. ये ऑर्डर्ड कलेक्शन नहीं होता है, राइट. इसमें कोई ऑर्डर्ड मेंटेन नहीं होता है, राइट. ठीक है, अगर इसमें ऑर्डर्ड मेंटेन नहीं होता है तो आई हैव अ वन क्विक क्वेश्चन, क्या सेट में हम इंडेक्सिंग कर सकते हैं क्या, जैसे हम लिस्ट में कर रहे थे. कोई लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि अगर सेट अनऑर्डर्ड होता है तो क्या सेट में हम इंडेक्सिंग कर सकते हैं क्या, क्या हम इंडेक्सिंग की हेल्प से कुछ चीज़ रिट्रीव कर सकते हैं क्या. यस, यू कैन जस्ट राइट यस और नो, समथिंग ऐसा कुछ. यस, ओके. और कोई, मे बी, ओके. देखो आप इंडेक्सिंग कर सकते हो नो डाउट, लेकिन आपको हर बार वैल्यू बदल बदल के मिलेगी. आप ट्राई करिएगा, है ना. इवन मैं आपको ये ट्राई भी करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में जब हम हैंड्स ऑन करेंगे कम्प्लीटली, राइट. सो उस मोमेंट पे जब मैं आपको ट्राई कराऊंगा तो आप देखोगे जब आप 0 इंडेक्स डालोगे तो मे बी आपको कुछ और वैल्यू मिलेगी, जब आप फिर से 0 डालोगे तो फिर कुछ और वैल्यू मिल जाएगी. ठीक है, इंडेक्सिंग कर सकते हैं लेकिन कभी भी आपको वो वैल्यू नहीं मिलेगी जो आपको सेट में दिखेगा. क्यों, क्योंकि ये अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है यूनिक एलिमेंट्स का. ठीक है, सो अगर हम बात करते हैं सेट कुछ हमारे म्यूटेबल होते हैं, राइट, जिनकी वैल्यूज़ को आप चेंज कर सकते हो, राइट. अब देखो फिर वही है कि अगर वैल्यूज़ अगर आप चेंज कर सकते हो तो इंडेक्सिंग पॉसिबल है क्या, तो आप जाके उस गिवन वैल्यू को देखोगे, फिर इसके बाद आप उसकी वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हो उस मोमेंट में, राइट. सो दिस इज द थिंग, राइट. सो जैसे यहाँ पे आपने लिखा कि हेलो सेट में, फिर आप जब इसको प्रिंट करोगे तो यू नो कि यहाँ से एच होगा, देन ई होगा, देन एल होगा और क्या होगा, ओ होगा, राइट. जो डबल होगा वो रिमूव हो जाएगा, डुप्लीकेसी यहाँ से हट जाएगी. ठीक है, ओके. तो सी स्लाइसिंग इज नॉट पॉसिबल बिकॉज सेट इज अनऑर्डर्ड, है ना. देखो यहाँ पे लिखा भी है ना, मतलब आप इंडेक्सिंग करोगे वैल्यू आपको मिलेगी नो डाउट, बट वो हर बार आपको चेंज होके मिलेगी, तो दैट डजंट मेक एनी काइंड ऑफ सेंस, है ना. जब आपको वैल्यू नहीं पता है तो भाई आप फिर चेंज क्या ही करोगे. तो उससे अच्छा क्या होता है, एक फंक्शन होता है दैट इज कॉल्ड द अपडेट फंक्शन,
राइट। अगर आप 100 की जगह 110 लगाना चाहते हो तो यू कैन जस्ट सिंपली राइट इन दिस वे। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, ये कंसेप्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी प्लीज़ याद रखिएगा। ओके। अगर आपको कुछ चीज़ रिमूव करना है तो देखो, रिमूव करने के लिए आपको पता है कि हम इंडेक्सिंग का भी हेल्प ले सकते थे, राइट, बट हम नहीं ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि अनऑर्डर्ड है ना कलेक्शन, राइट। तो यहाँ पे हम क्या रिमूव, यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, रिमूव फंक्शन का, ठीक है। देन वी हैव दी वन मोर टाइप ऑफ सेट जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रोजन सेट। फ्रोजन सेट क्या होता है, इम्यूटेबल होगा, दैट मीन उसकी वैल्यूज़ को हम चेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जो भी इनपुट होगा वही आपका आउटपुट होगा, ठीक। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे दिस इज गोइंग टू बी हेलो, राइट। अगर आप इसका फ्रोजन सेट बनाओगे सो दिस इज गोइंग टू बी योर आउटपुट ओवर हियर। मतलब डुप्लीकेसी तो हटेगा लेकिन आप वैल्यूज़ वगैरह को मॉडिफाई यहाँ पे नहीं कर पाओगे वंस इट इज़ क्रिएटेड, ठीक। ओके। देन वी हैव द वन मोर डेटा टाइप दैट इज कॉल्ड द मैपिंग। आप लोगों ने जेसन फाइल वगैरह देखा होगा, आई होप सो, है ना। आपने डिक्शनरी का नाम सुना होगा, राइट। उसी से इंस्पायर हुआ एक कंसेप्ट है दैट इज कॉल्ड द मैपिंग। अब मैपिंग में क्या करते हैं, देखो मैपिंग में यूजुअली हम क्या करते हैं कि जैसे मेरे को लेट्स से, हाँ, मेरे को ऐसा कुछ बनाना है कि भाई ये सूजल है, सूजल के 10 नंबर है, ठीक है। फिर लेट सपोज ये अमित है, अमित के 20 नंबर हैं। फिर ये लेट सपोज ये राघव है और राघव के कितने 30 नंबर हैं, ठीक। फिर मेरे पास लेट सपोज कि मेरे पास यहाँ पे एक और नाम है अमन है, अमन के कितने 70 नंबर हैं, है ना। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि नेम के अगेंस्ट में नंबर में सेव कर रहा हूँ, नेम के अगेंस्ट में मैं नंबर सेव कर रहा हूँ, नेम के अगेंस्ट में नंबर सेव कर रहा हूँ, एंड सो ऑन, राइट। तो जब आप नेम के अगेंस्ट में कुछ भी चीज़ सेव करते हो, राइट, तो ये आपका की हो जाएगा एंड दिस इज गोइंग टू बी योर वैल्यू, है ना। और बीच में इसको हम हटा देते हैं, इसकी जगह व्हाट वी डू, वी सिंपली राइट द कोलन ओवर हियर, है ना। और इसी को हम लोग बोलते हैं मैपिंग। मैपिंग इज एक्चुअली यूज टू स्टोर द वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ पेयर, राइट। ये देखो ये पेयर दिख रहा है आपको, और पेयर किसका होता है, एक की होगा, दूसरा आपका क्या होगा, सेकेंड इज वन इज योर वैल्यू ओवर हियर। आई होप दिस थिंग इज ऑल्सो मेकिंग सम सॉर्ट ऑफ सेंस, है ना, ये भी आपको बात समझ में आ रही होगी, है ना। सो अगर हम थोड़ा डेफिनेशन वाइज चले जाएं, सो देखो मैपिंग कुछ और नहीं, डिक्शनरी है। द प्राइमरी मैपिंग डेटा टाइप इज द डिक्शनरी, है ना। तो डिक्शनरी इज द अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ की वैल्यू। अब देखो यहाँ पे भी अनऑर्डर्ड कलेक्शन है, राइट। सो आपको जब वैल्यू रिट्रीव करनी है तो क्या करोगे, आप की भेजोगे तो उसके सामने से आपको वैल्यू मिलेगी, राइट। और ये किस फॉर्मेट में होता है, करली ब्रेसेस, देन यू विल हैव अ की, देन वैल्यू, कॉमा, फिर एक और करली ब्रेस, सॉरी, फिर एक और आपका की और फिर एक और वैल्यू। देखो बेहतरीन एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है ना। जैसे मैंने एक डिक्शनरी बनाया, इसमें दिया नेम, अलाइस, एज 25, सिटी न्यूयॉर्क, राइट। सो दिस इज द थिंग, है ना। अगर देखो ये डबल कोट्स में होगा क्योंकि ये तो नाम है, ये की है, राइट। फिर अगर वैल्यू अगर आपका नंबर है तो इसको डबल कोट्स में लिखने की जरूरत नहीं है, आपके ऊपर है। अगर नंबर है तो डायरेक्टली आप लिखो, राइट। सो सी दिस इज द वन कंपोनेंट की वैल्यू पेयर, दिस इज द सेकंड वन सेपरेटेड बाय कॉमा, दिस इज द की वैल्यू पेयर एंड दैट्स इट। यहाँ पे एंडिंग, यहाँ पे स्टार्टिंग, ठीक है। फिर जब आप इसको प्रिंट करोगे तो आपको डिक्शनरी प्रिंट हो जाएगी, राइट। फिर लास्ट में एक हमारे पास एक और चीज आता है दैट इज कॉल्ड द नन टाइप एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। सो जब आपको कुछ भी रिटर्न नहीं करना होता, राइट, जब आपको कुछ भी वैल्यूज नहीं बताना है तो उस टाइम पे आप क्या यूज करते हो, नन डेटा टाइप यूज करते हो। तो एक बार डेफिनेशन को थ्रू कर लेते हैं। तो रिटर्न द एब्सेंस ऑफ द वैल्यू कॉमनली यूज्ड एज द डिफॉल्ट रिटर्न वैल्यू फॉर द फंक्शन दैट डू नॉट एक्सप्लिसिटली रिटर्न एनीथिंग, राइट, एंड इट ऑल्सो रिप्रेजेंट एन ऑब्जेक्ट दैट डज नॉट कंटेन एनी वैल्यू। अब ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा जब हम फंक्शंस की बात करेंगे, तो उस मोमेंट पे हम नीचे रिटर्न कुछ नहीं करते, रिटर्न लिख देते हैं नल। अगर आपको कुछ भी वैल्यू नहीं मिली, लेट्स सपोज कि आप एक फंक्शन बना रहे हो और आपको डिजायर्ड वैल्यू नहीं मिली है, राइट। सो उस मोमेंट पे आप क्या करोगे, आप लिखोगे रिटर्न नल, काम खत्म, ठीक है। सो विल सी दिस थिंग, राइट, डोंट वरी, इस पे हम वापस से आएंगे एक बार, है ना, याद रखिएगा आप इसको, ठीक है। बाकी टाइप्स ऑफ डेटा में अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, यू कैन जस्ट लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन एवरीवन। और टाइम हो रहा है काफ़ी ज़्यादा, आई नो, बट यार फिर वही चीज़ है ना, देखो डेप्थ में अगर हम जाएंगे तो टाइम लगेगा भाई, है ना। मतलब आई कांट डू एनीथिंग विद दिस थिंग, है ना। और ऊपर ऊपर से फिर ऐसे जाने में फिर कुछ मज़ा भी नहीं आता, ठीक है। मतलब फिर आपको वही लगेगा यार ये तो हर जगह सेम ही चीज़ है, राइट। फिर मैं यहाँ से मतलब मैं मेरे से आप क्यों ही पढ़ोगे, है ना, दिस इज दी वन थिंग, राइट।
सो थोड़ा तो देखो डेप्थ में जाना पड़ेगा, राइट एवरीवन, है ना। सो अगर आप जितना डेप्थ में जाओगे उतनी नॉलेज आपको इंक्रीज होगी। एटलीस्ट अगर आप 100% यहाँ पे सुनोगे तो अगर 20-30% भी याद रहेगा ना, दैट इज़ मच मोर इनफ, है ना। सो जैसे यहाँ पे मैंने आपको सेट का काइंड ऑफ कंसेप्ट बताया, राइट, कि अनऑर्डर्ड होता है, आप उसमें इंडेक्सिंग करोगे लेकिन आपको डिजायर्ड वैल्यू नहीं मिलेगी, राइट। आप स्लाइसिंग भी नहीं कर सकते हो यहाँ पे, राइट। अगर आपको कुछ भी अपडेट करना है, राइट, तो यू आर सिंपली गोइंग टू यूज दी अपडेट फंक्शन। अगर कुछ भी चीज़ इरेज करना है तो आप सिंपली रिमूव फंक्शन का यूज़ करोगे, ठीक है। ओके, सो दिस इज एक्चुअली मेकिंग सम सॉर्ट ऑफ सेंस आई गेस, है ना। सो लेट मी जस्ट सी। ओके, सो देखो डेटा टाइप वगैरह कंप्लीट हो गया, है ना। इतना ही डेटा टाइप है पाइथन में। दो दो बेसिक दो टाइप में डिवाइड किया है, एक न्यूमेरिक और एक आपका सीक्वेंशियल। अब देखो यहाँ पे सीक्वेंशियल में देखो कोई भी उठा लो आप, सब में सीक्वेंस है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, है ना। कोई भी उठा लो आप, रेंज उठा लो तो रेंज में देखोगे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8 सब सीक्वेंस में लिखे हैं। दैट इज वाई दीज नंबर्स एक्चुअली फॉल्स इन दी सीक्वेंस डेटा टाइप, है ना। ऊपर जाओगे इंट है, एक ही नंबर है, उसमें कोई सीक्वेंस ही नहीं है ना। तो ये न्यूमेरिक डेटा टाइप में आपका आ गया, नॉन सीक्वेंशियल डेटा टाइप हो गया, राइट। सो रीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, कि ऐसा क्यों है वैसा क्यों है, ठीक। ओके, सो जस्ट गिव मी अ मोमेंट, है ना। मैं आपको एक अटेंडेंस शीट भी शेयर करता हूँ, इसको प्लीज़ आप भरिएगा, राइट। एंड देन वी कैन, इफ़ यू आर डन देन वी कैन जस्ट गो थ्रू द लिटरल एंड विल रैप अप, ठीक है। अगर देखो टाइम कम लगेगा तो वी कैन एक्सटेंड दिस बूट कैंप एज वेल, डोंट वरी, है ना। हम 1-2 दिन और एक्स्ट्रा भी कर लेंगे, बट हाँ हम पूरा करेंगे, डोंट वरी, है ना। यू कैन जस्ट चेक दी कॉमेंट सेक्शन, मैंने यहाँ पे गूगल फॉर्म एक लिंक भेजा है, राइट, and just let me know it is working or not. I guess this is for the day 2, right? हाँ ये day 2 का है, right? So please make sure करें कि आप इसको भरेंगे, मतलब सर्टिफिकेट के लिए by the end of this boot camp आपको एक इंडस्ट्रियल लेवल का सर्टिफिकेट मिलेगा, जितने भी दिन होंगे will do the same thing, right? So you can just take your time, I can just wait for 2 minutes, then we can just jump to the literal parts. ओके ग्रेट, ओके, तो प्लीज़ आप इसको फिल आउट कर दें अभी, है ना। देन वी कैन जस्ट जम्प टू द लिटरल सेक्शन। ओके फाइन, ठीक है। अगर आपने भर दिया, राइट, सो सी नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि भाई लिटरल क्या होते हैं। एनीवन हु वांट्स टू टेल लिटरल क्या होते हैं? यस। सो देखें, लिटरल की अगर मैं बात करूंगा तो लिटरल कुछ और नहीं, फिक्स वैल्यूज होते हैं जो कि हम वेरिएबल पे असाइन करते हैं। अगर a इज इक्वल टू 4 लिखा है तो ये आपका वेरिएबल होगा और ये आपका क्या होगा, दिस इज गोइंग टू बी योर लिटरल, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी योर लिटरल एंड दिस इज गोइंग टू बी योर वेरिएबल, राइट, ओके। फिर लिटरल की अगर हम बात करेंगे तो जैसे हमारे पास न्यूमेरिक डेटा टाइप थे, उसी हिसाब से आपको यहाँ पे न्यूमेरिक लिटरल भी मिलेंगे। जैसे इंटीजर हो गया तो ये देखो ये भी इंटीजर हो गया, राइट, ये भी आपका इंटीजर में आएगा क्योंकि ये भी होल नंबर है, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, राइट। फिर फ्लोटिंग ये हो गया, फ्लोटिंग लिटरल, जो कि आपके पॉइंट में या फिर डेसिमल्स में लिखें, राइट। फिर अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करोगे तो दिस इज योर लिटरल, जिसकी वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते, है ना। आप वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर सकते हो, आप यहाँ से 5 लिख दो, बट 4 को आप चेंज नहीं कर सकते, 4 4 ही होगा, राइट, ठीक है। फिर हम स्ट्रिंग लिटरल्स की बात करते हैं तो स्ट्रिंग लिटरल फिर वही सिंगल लाइन स्ट्रिंग हो जाएंगी, राइट, एनक्लोज इन अ सिंगल लाइन, तो दिस इज कॉल्ड द स्ट्रिंग लिटरल, दिस इज कॉल्ड द स्ट्रिंग लिटरल, राइट। इवन यू कैन राइट इन द ट्रिपल कोट्स, राइट, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, तो दिस इज कॉल्ड द स्ट्रिंग लिटरल, ठीक है, जिसकी वैल्यूज को आप चेंज नहीं कर सकते हो। आप वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर सकते हो बाय रिप्लेसिंग दिस लिटरल, राइट। सो इन द सेम वे फिर अगर हम बात करेंगे कि बुलियन लिटरल की, तो देखो ट्रू है फॉल्स है, अगर आपको इसको फॉल्स बनाना है तो आप इसको फॉल्स लिख सकते हो, लेकिन आप ट्रू की वैल्यू को चेंज नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो दिस इज योर बुलियन लिटरल। देन वी हैव सम सॉर्ट ऑफ वन मोर कंसेप्ट दैट इज कॉल्ड द एस्केप सीक्वेंस, है ना। दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट, मे बी आपने 11, 9, 10 या पहले अगर आपने CSE वगैरह पढ़ा होगा कंप्यूटर साइंस, तो वहाँ पे आपने इस कंसेप्ट को भी पढ़ा होगा, दैट इज कॉल्ड द एस्केप सीक्वेंस, राइट। सो देखो इसमें न्यू लाइन आता है,
अगर आपको लेट सपोज कि आप यहाँ पे प्रिंट करा रहे हो, एग्जाम्पल ले लेते हैं इंडिया, है ना। फिर आप नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कराना चाहते हो इज, फिर नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कराना चाहते हो माई, फिर नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कराना चाहते हो कंट्री, राइट। तो आप क्या यूज़ करोगे, आप यूज़ करोगे न्यू लाइन का, ठीक है। कैसे लिखते हैं, देखो ये इनपुट है हेलो बैकस्लैश एन देन वर्ल्ड, इसके आगे क्या लिखा था, हेलो। तो देखो आउटपुट क्या आएगा, हेलो और नेक्स्ट में वर्ल्ड, राइट। देन टैब की बात करेंगे तो टैब भी कुछ ऐसे काम करता है, बीच में स्पेस हो जाएगा, राइट। टैब में कितने स्पेस होते हैं, 4 स्पेस होते हैं, राइट। देन हमारे पास बैक स्लैश, अगर आपको बैक स्लैश यूज़ करना है, राइट, तो आप बैक स्लैश यहाँ पे लिख सकते हो। देन वी हैव अ सिंगल कोट्स, अगर आपको सिंगल कोट पुट करना है, देखो इट इज़ अ रेनी डे, देखो आप देख सकते हो ना यहाँ पे दिस वे, है ना, इट इज़ अ रेनी डे, राइट। फिर इसके बाद इन अ सिमिलर वे वी हैव द डबल कोट्स। देन अगर आपको रिटर्न करना है, राइट, कि आप वापस से वहीं आ जाओ, राइट, तो आप कैरेज रिटर्न का यूज़ करोगे, बैक स्पेस के लिए स्लैश बी, फॉर्म फीड के लिए स्लैश एफ स्लैश यू, देन यूनिकोड के लिए आप 32 बिट का आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपको देखो ये इमोजी प्रिंट कराना है तो आप ये लिखोगे, ठीक है, तो ये इमोजी आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको कोई ग्रीक कैपिटल लेटर जैसे ओमेगा हो गया, पाई हो गया, अगर इसको प्रिंट कराना है तो आप ये यूज़ करोगे 16 बिट यूनिकोड, ठीक। सो दिस इज दी वन थिंग, है ना, ये स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स होते हैं, राइट। एंड लेट मी जस्ट सी द लास्ट पार्ट, आई गेस ठीक है, बाकी और कुछ है नहीं इसमें, आई गेस, है ना। ये तो हमने कर ही लिया है कि डेटा टाइप क्या होता है, आप टाइप फंक्शन का यूज़ करोगे तो आपको दिख जाएगा कि हाँ भाई ये इंट क्लास का है, ठीक है, ओके। इस पे हम आएंगे, मे बी हम कल देख सकते हैं, राइट, इस चीज़ को। देन वी हैव अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, और रिजर्व वर्ड्स वगैरह आपको पता ही होंगे थोड़े बहुत कि रिजर्व वर्ड्स क्या होते हैं जिनको आप मतलब इधर उधर यूज़ नहीं कर सकते हो, राइट। सो नाउ व्हाट वी कैन डू, मे बी टुमारो आपका सेशन नहीं होगा, राइट, कल आपका सेशन नहीं होगा, मे बी डे आफ्टर टुमारो वी विल अगेन कैच अप एट 7 PM, राइट। सो मीन वाइल मैं जितनी भी स्लाइड हुई हैं आई कैन जस्ट शेयर दो स्लाइड, सो आप एक बार रिवाइज कर सकते हो इवन बाई गोइंग टू द यूट्यूब चैनल एज वेल, राइट, ठीक है। और अगर आपको हमारी वेबसाइट एक्सप्लोर करना है ना, सो व्हाट यू कैन डू, आप हमारी वेबसाइट को भी एक्सप्लोर कर सकते हो, hygienlabs.in की, राइट। लेट मी जस्ट शो यू, हाँ ये रही, है ना। सो इवन यू कैन जस्ट एक्सप्लोर आवर वेबसाइट एज वेल, इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, मतलब यू कैन जस्ट राइट योर ब्लॉग्स एंड अदर थिंग, राइट। सो दिस इज दी वन थिंग, मीन hygienlabs.in अगर आप जाओगे तो यू विल सी दी वेबसाइट, है ना। सो व्हाट वी डू, वी एक्चुअली प्रोवाइड दी guaranteed internship, right, not the support and the placement support, right. So we have the tie up with the IITs, incubated startups and all these things. So आप 2-3 महीने का you have to simply do the course, तो उतने आपको eligible हम बना देंगे and you can just we will simply deploy you to those startups, right. और आप वहाँ पे IITs के जो बंदे होंगे उनके साथ आप डायरेक्ट काम करोगे, यू विल सी कि यार वो लोग कितना मतलब क्या ही मतलब सोचते हैं, कैसे काम करते हैं ऑन ऑल दीज थिंग, ठीक है। Okay, fine. Thank you everyone for joining here. है ना, have a good day, right?